decades, like the two siblings of a great family. But today's official merger would open a new chapter in our relation. Now, I would like to welcome each one of our guests for gracing this historic occasion. So first of all, today's chief guest, most distinguished Education Secretary UT Ladakh, Ma'am Banu Prabha, IAS. We all must welcome her from the core of our hearts with thundering applause. I would like to welcome our guest of honor, Ma'am Delden Angmo, the most energetic and charismatic who works day and night for the betterment of this department. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome Kapunsok Dorje, DPO. Sir, your service to this education department is unparalleled, and hope to serve in the same zeal and energy in the coming years as well. Welcome, sir. Now, I would like to welcome Sir Chamba Tandar, Zonal Education Planning Officer. You have served this department in far-flung areas, and your great experience will be a great treasure for this department as well. So, welcome you, sir, once again for a historic movement. Now, Principal ma'am, along with that staff members, lecturers, masters, teachers, non-teaching staff members, and students for this. because there, if we somehow forget them or neglect them, then we are not in the full energy. Thank you, sir, for setting the tone of this program so beautifully. Your words reflect that the foundation of every society and its growth lies in the hands of visionaries. We are honored to have one such leader with us. I now request Ma'am Delden Angmo, the Chief Education Officer, to come forward and share her valuable thoughts on this important occasion. Tene changme sanghala ngeja changma diring government girls higher secondary school nang middle school le teachers nang loptuk changma nge ning takpana mubarak jin tene ngeja khetana diring demba khetana mane ngata history na illustration je goma ngata steps takpo step shi ko thai just no tene kawe na khetana ngata middle school lo khetana girls higher secondary school wo nyapo ngata merge jate no tefia nge Education Department changmai chokna ngeja changma mubarak jiniale वैसे अंकेतना ngata NEP 2020 ना ये वजह से तो नो कि ngata अंकेतना स्कूल कॉम्प्लेक्स चर्चेस क्लस्टर चर्चेस पोका ngata NEP 2020 का शेड सालते तो नो हालाले ते चोसला ता दिरिंग ngata ई का गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बेका ngata मिडिल स्कूल वो मर्ज जाते नो या निस्को खेतना ngata शेलते नो हालाले तेना चोसला न्याम्पो खेतना ngata ई कने खालसे नंग खारू नंग yang jaga mangpo जी कने स्कूल खची ngata diring ngata ika mars jachi sino hale teo ngata virtually diring secretary ma'am me chakne khetana virtually khonte weka mars jachi sino tene changmange mubarak jiniale tene I wo khetana ngata mi changme na ngatang yulpa inchi gya parents inchi gya teacher changme na confusion mangpek to ki ha mars jo na ngai school wo ban songstang chi sino tene ngai khetana teacher hun metkan cha shi chi sino zerkan jong to tene teo khetana bilkul ezukshik ma no gale tene teacher hune chamshik sanction post yot tene te teacher hun ang khetana tena school wona lushi sino gale tene ngata khetana ngata Ladakh sena school ngata yul chun digmane met pano tena ngata primary school zenjang middle school zenjang school mangpek ngata peste to yak teve na khetana ngata enrollment pang khetana nyung jigmane met pano tene teachers kuna ngata te kana aka nyung jig ika nyung jig jaste tene ngata te school wo ngata strengthen cho mange line pin hale ta I school un ngata merge cho sting ne tene ngata te school un ngata mal demo cho strengthen cho ngen te suno chikpatang ngata resources kun demo chu ngata utilize chu ngen chi suno subject teachers kun ngata thop chi suno nispa ngata khechana infrastructure kun mal demo nang gyala ngata thop chi suno yale sumpa ngata khetanang thu gunena changme sang important chalak shikte ono thu nyun jikatana tevena peer learning ngata mani chama no yale tene
thu chikna chikena lopshes mamang po yano teo ngata lops thupsa miru khalale tene jipa khetana ngata thu ne na khetana healthy competition mo thu new china ngata cha thuwa miru tene thu mangpe sang mangpo yot pasang tene tevena healthy competition jang ngata cha thup du gyale tene te singne ta diring ngata khetana main ta goma rangata guzukpo government girls high secondary school wo middle school nya po merge zatena ngata goma steps po uthai justo no yale tene tevena phantox po khetana ngata chiduksena ngata chikpa tang principal ma'am e under khetana school wo demo jose ngata manage chongen chiso no yale ta daksa khetana ngata nursery nang 12 sakpe khetana government girls high secondary wo nursery nang 12 sakpe school groups te no yale te fi nge ja changma mubarak jet tene tevena Hantok chenmo teo chano ki ngata khetanang thu nursery nang 12 sakpa yot pasang tewe ka khetanang ngata chikpatang teacher ngata shortage mane chachis mano kale resources gun ngata ma demo chu se utilize chachis no tene thu chun gula ngata subject teacher I ka ngata lecturers jeste masters jeste qualified teacher wese ngata middle school na qualified teacher in nang tene I we jaste ngata phantok po ma chashi cheso no kale tene teo man pa khetanang young school na chi activities mangpek chatna tene competition mo mal demo chachise no tene junior thun cham shigyot senior thun ne kana ma mangpo chalak shikhon la lop shichise no gale tena chuksla ngata khetana girls school na ngata laboratory se facilities library nang atal tinkering lab nang ICT lab te changma thu chun changme ata time to time you utilize chungen chise no khalale tene nge time mangpek mane na nge cha changma yang lanchi khetana ning tapana thukji chejun mubarak jun nyampo ika chamshik parents kyote yotnang tene ngeja changmang khetana ika welcome jun tene ngeja ang khetana ma mubarak jun tene I chokse jaste ngeje thun la khetana phantox ma chinme chachi suno thukje che जुले ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बच्चे बहुत धूप में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि ये लद्दाख का सबसे पुराने स्कूलों में से एक, सबसे हमारे रिस्पेक्टेड रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी सर जो लद्दाख के मतलब हु इज़ द फर्स्ट IS officer of this place, he was part of the school. हमारे बहुत सीनियर सर्जन्स, बहुत सीनियर इंजीनियर्स जो भी सर्विसेज में भी हैं वो इस स्कूल से पढ़े हैं। तो ये स्कूल बहुत हिस्टोरिक स्कूल है, एटलीस्ट ले के लिए। और आज हम इस स्कूल से यहाँ से एक और हिस्टोरिक कदम आगे लेकर जा रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि हम ये शुरुआत इस स्कूल से कर सके। एंड ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाया बिकॉज हमारी मैडम डायरेक्टर हु इज़ नॉट हेयर, श्रीमती ताशी डोलमा, उनके एफर्ट्स थे। मैडम दिलदन आंगमो जो CEO हैं डिस्ट्रिक्ट ले के लिए, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर फुनसुकले, हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मैडम कुंजांग जो प्रिंसिपल है यहाँ की, इन सब के सपोर्ट से हम एक बहुत बड़ा कदम ले पाए कि आज ये एक स्कूल जो एक ही कंपाउंड में था, एक मिडिल स्कूल है और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जस्ट मेंशनिंग इट इन लाइटर नोट, इट्स लाइक अ हस्बैंड एंड अ वाइफ जो एक घर में रहते हैं पर एक दूसरे से बात नहीं करते, वैसा ही हो जाता है ना। बट अब सोचिए अगर एक घर में हस्बैंड एंड वाइफ बात करना शुरू करे तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ेंगी। तो यही एक इंटेंशन थी कि अभी जो रिसोर्सेज मिडिल स्कूल के हैं उसको सीनियर सेकेंडरी यूज़ नहीं कर पाता, और जो सीनियर सेकेंडरी की अच्छी लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, उनको हमारे मिडिल स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो अब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अब ये पूरा स्कूल एक स्कूल हो जाएगा। जो रिसोर्स क्लास 1 का बच्चे के लिए रेलेवेंट है, भले ही वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हिस्सा हो, या अगर कोई चीज़ है जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को हो मगर वो मिडिल स्कूल का हिस्सा थी, नाउ दोनों अर्स्ट वाइल्ड स्कूल्स, मिडिल स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, वो दोनों सभी रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो शायद मैडम दिलदन ने भी अपने एड्रेस में बोली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक मिशन ये है कि 2030 तक, आगे 5 साल और है हमारे पास, हर बच्चा, हर इंडिया का बच्चा 15 ईयर्स ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग करे। अब 15 साल का स्कूलिंग का मतलब ये होता है कि नर्सरी, प्री प्राइमरी,
के 2 साल नर्सरी, LKG, UKG, और फिर जब वो बच्चा 6 साल का हो जाए उसको पहली कक्षा में हम लेंगे, 1 से 12वीं तक। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नीति आयोग के कुछ डॉक्यूमेंट्स ने रिसर्च करके ये प्रूव किया है कि यदि एक बच्चा एक ही कंपाउंड में, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही जगह पर लगातार 15 ईयर्स 15 साल पढ़ता है तो उसकी लर्निंग बेहतर होती है। ये मैं आपको थोड़ा पर्सनल एग्जांपल भी दे सकती हूँ। मैं खुद एक मदर भी हूँ। मेरा बड़ा बेटा 5 साल का है और ये उसका 3रा स्कूल है। अब हम पहले जहाँ पोस्टेड थे तो हमें तो स्कूल बदलना पड़ा। एंड मैं खुद देखती हूँ कि जब भी वो स्कूल से निकलता है और नए स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो 3-4 महीने बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट पूरा बदल जाता है, बोली बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं और सबसे ज़रूरी उनके दोस्त बदल जाते हैं। अब मैं कई बार, अब हमारे पास तो वो ऑप्शन नहीं है, मगर जिनके पास ये ऑप्शन है हमें वो एक्सरसाइज करना चाहिए। ये बच्चा जो प्री प्राइम नर्सरी में 3 साल का था हमारे साथ जुड़ता है, हमें कोशिश करनी है, ये डिपार्टमेंट को कोशिश करनी कि जब तक वो बच्चा 12वीं क्लास पूरी ना कर जाए वो एक ही कंपाउंड, एक ही माहौल में रहे। उसके स्कूल बदलने से, उसके आसपास के टीचर बदलने से, उसके दोस्त बदलने से पढ़ाई पर हम बोलते हैं कि शायद फ़र्क नहीं पड़ता होगा, मगर उसके सोचने के, उसके सीखने के तरीके पे फ़र्क पड़ता है, उस बच्चे की डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा इंश्योर करने के लिए कि बच्चा जो 3 साल की उम्र में हमारे साथ जुड़ा वो 17-18 साल की उम्र में पूरी फॉर्मल स्कूलिंग करके निकले। दूसरा चीज़ हम कई बार देखते हैं कि बच्चा प्राइमरी स्कूल पढ़ता है, उसके बाद वो क्लास 5th के बाद एक नए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसको TC लेना होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों अच्छे स्कूल ना मिलने के चक्कर में ड्रॉप आउट्स भी होते हैं। यहाँ वो रेशियो कम है मगर ज़ीरो नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं के बाद स्कूल से निकल जाते हैं पूरी तरह, उनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे ही कुछ बच्चे 8वीं के बाद निकल जाते हैं। यदि हम इस स्कूल को एक कंटिन्यूअस जर्नी, एक लगातार होने वाला सफ़र बना देंगे तो वो होने के चांसेस काफ़ी ख़त्म हो जाते हैं। माता पिता को, आपको भी पता है कि हमारा बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया, वो नर्सरी से LKG, UKG, फर्स्ट, ऐसे 5th, 6th, 8th, 9th करके वो 12th करके ही निकलेगा। तो बच्चे के लिए भी लाइफ में सर्टेनिटी रहती है और हमें भी ये एज अ डिपार्टमेंट, हमें भी ये भरोसा रहता है कि उस बच्चे के अब स्कूल से निकलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लद्दाख में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ इनरोलमेंट बहुत कम है। तो क्या होता है कि हम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम फंड्स लेने जाते हैं, मैं अपने डिपार्टमेंट में कई बार ये बोलती हूँ कि हमसे कई बार ये पूछा जाता है कि आपके पास इतने सारे स्कूल्स हैं मगर इनरोलमेंट इतना कम क्यों है। तो अगर हम अब उनको बता सके, पहले हम क्या बोलते थे, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें मान लीजिए केवल 200 बच्चे हैं, एक मिडिल स्कूल है उसमें 200 बच्चे हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक स्कूल है जिसमें कुल मिला के 400 या 500 बच्चे हैं, तो उनको भी ये भरोसा होता है कि इट्स अ बिग स्कूल। और हमें भी, अगर हम बोले कि हमें 500 बच्चे के स्कूल के लिए एक लाइब्रेरी चाहिए तो मिलनी आसान हो जाती है। मगर अगर मैं बोलूँ केवल 200 बच्चे और उस स्कूल के लिए एक लाइब्रेरी दो तो थोड़ा एप्रीहेंशन रहता है। तो हमारे लिए और भी बड़ा स्टेप हो जाएगा अगर हम स्कूल्स को साथ लेकर आ पाए जहाँ इनरोलमेंट ज़्यादा होगा, तो हमारे लिए फ्यूचर में भी फंडिंग लेना थोड़ा आसान हो जाता है। उसके साथ एक और चीज़ जो हम सबके लिए बहुत अच्छी हो गई वो ये है कि ये बच्चों को देखकर, इन बच्चों को जो, अब क्या होता था मिडिल स्कूल के लिए यूजुअली स्टैंडर्ड 8 इज़ द एल्डेस्ट सेक्शन, सबसे बड़ा सेक्शन 8वीं होता था, या प्राइमरी स्कूल के लिए 5वीं होता है। तो एक नर्सरी के बच्चे के लिए इंस्पिरेशन होता है कि मैं 5वीं क्लास के बच्चा जैसा बनूं। मगर अब अगर ये बच्चा 11th 12th में किसी को साइंस कॉमर्स पढ़ते हुए देखता है तो उस बच्चे के लिए रोल मॉडल और बड़ा हो जाता है। तो हम सब के लिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि अब जो बच्चा नर्सरी में आया उसकी इंस्पिरेशन एक स्टैंडर्ड 8 का बच्चा नहीं है, उसकी इंस्पिरेशन 11th 12th में पढ़ने वाला बच्चा है। और जब इधर 11th 12th के बच्चे आगे जाके डॉक्टर या इंजीनियरिंग, लॉ, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो वो ना केवल एक
छोटे ग्रुप को, मगर आप एक बड़े ग्रुप को इंस्पायर करेंगे कि एक नर्सरी का बच्चा देखकर बोल सकता है कि मेरे स्कूल से एक दीदी, एक भैया ने इंजीनियर का एग्ज़ाम क्रैक किया, या मेडिकल का एग्ज़ाम क्रैक किया, या लॉ का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो इन छोटे बच्चों के लिए एक बहुत छोटी उम्र में एक बड़ी इंस्पिरेशन उनको अपनी आंखों के सामने देखने के लिए मिलेगी। इससे एक और फ़ायदा होगा जो हम कई बार देखते हैं कि जब भी हम क्लास 10th या 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिस्कस करते हैं अपनी टीम के साथ, तो हमारे टीचर्स कई बार बोलती है कि हमने 9th-10th में तो बहुत मेहनत करी, मगर बच्चे का बेस ही कमज़ोर था। तो हम पूछते हैं बेस भी तो हमने ही बनाया, तो कहते हैं नहीं नहीं, वो तो फला फला मिडिल स्कूल से आया था, या फला फला प्राइमरी स्कूल से आया था। तो क्या हो गया, एक डिस्कनेक्ट हो गया। जो टीचर 11th-12th में पढ़ाती है, 9th-10th में पढ़ाती है, उसको लगता है मेरे पास तो बच्चा, क्योंकि मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर, मास्टर या लेक्चरर हूँ, तो मेरे पास तो बच्चा 15 साल की उम्र में आया, तो अब इसको फंडामेंटल्स क्लियर कराना बहुत मुश्किल था। मगर अब वो डिस्कनेक्ट ख़त्म हो जाएगा। वो मैडम प्रिंसिपल कुंजांग को भी पता है कि नर्सरी में जो 3-3.25 साल का बच्चा है वो भी उनकी जिम्मेदारी है, जो 12th स्टैंडर्ड में 17-18 साल का बच्चा है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अब प्रिंसिपल भी, लेक्चरर्स और मास्टर्स भी पहली क्लास से ध्यान देंगे, बिकॉज नाउ देयर इज़ वन स्कूल, ये आपका स्कूल है। अब आप वो एलिनेशन नहीं रख सकते कि वो तो मिडिल स्कूल था तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या मेरे पास तो बच्चा आया ही 9वीं क्लास में है तो मैं क्या पढ़ाऊँ। अब आपकी जिम्मेदारी 9वीं से पहले शुरू होगी। तो ये आपको मैडम प्रिंसिपल और आपके साथ जितने लेक्चरर्स मास्टर्स हैं, आपको ध्यान देना है कि जो बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है उसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि 4-5 साल बाद यही बच्चा फिर 9वीं 10वीं 11वीं में आएगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ये बच्चे का बेस कमज़ोर था, या मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से मिडिल से कौन से स्कूल से पढ़ कर आए। तो अब टीचर्स, लेक्चरर्स और मास्टर्स की जिम्मेदारी बढ़ेगी, मैडम प्रिंसिपल की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उनका परिवार बड़ा हो रहा है। तो ये इससे बच्चों के लिए फ़ायदा हो गया, बिकॉज अब बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ 5वीं या 8वीं क्लास तक नहीं रही। जब तक वो बच्चा 12th करके अच्छे मार्क्स लेके नहीं निकलता है, मैडम प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का एजुकेशनल लर्निंग अच्छा रहे। तो यही कुछ कदम है, यही कुछ इंटेंशंस थी जिसके साथ हमने मर्ज करना शुरू करा है। एंड हम बहुत होपफुल है कि इस हिस्टोरिक स्टेप में और भी स्कूल्स और भी जोन्स के और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत लोग आगे आएंगे और इससे सीखेंगे। एंड मेरा सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ डिपार्टमेंट अपनी तरफ से, टीचर्स और मास्टर्स, लेक्चरर्स अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, मगर आप लोग भी प्लीज़ बच्चों की पढ़ाई का बहुत ध्यान रखिए। हम कई बार पेरेंट्स से बात करते हैं, कई बार तो जो फादर्स होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता हमारा बच्चा कौन से स्कूल में और कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। और कई बार हमने, मतलब मैंने तो अक्सर देखा ही है कि बच्चों के बैग में, स्कूल में टीचर बुक के बीच में कॉपी पेंसिल रख कर बंद कर देती है, वो ऐसे ही बच्चे के बस्ते में जाता है, अगले दिन ऐसे ही आता है। मतलब उसके पेरेंट्स इतनी जहमत भी नहीं उठाते कि बैग खोलकर कॉपी खोले, पेंसिल बीच में पड़ी है, पेंसिल टूटी हुई है, पेंसिल कैसी है, वो खोल कर बच्चे के साथ मेहनत करें। ऐसा ही होता है ना, सब बच्चे घर जाते हैं, बस्ते फेंक देते हैं और अगले दिन वो बस्ता उठाकर ले आते हैं, है ना। तो ये सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगा, ऐसा मत होने दीजिए। हम 5-6 घंटे में, 7 घंटे में जितना मेहनत कर सकते हैं कराते हैं, मगर बच्चा लगभग 14-15 घंटे आपकी कस्टडी में रहता है, आपके साथ रहता है। आप ही उस समय बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, उसने क्लास में क्या पढ़ा, क्या सीखा, उससे पूछिए, उसको समझ आता है कि नहीं समझ आता है। जैसे अब आपको, मतलब मैंने अभी रिसेंटली एक स्कूल में देखा कि एक बच्चे की आईसाइट वीक हो गई, और ये चीज़ उसकी माता से पहले, उसके पेरेंट्स से पहले हमारी टीचर को पता चल जाती है, क्योंकि वो क्लास में देखते देखते बार बार अपनी आंखें बंद और वो कर रहा था। तो मुझे एज अ मदर भी मुझे दुख हुआ कि ये चीज़ तो माँ को पहले पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे को दिख नहीं रहा, मगर ये चीज़ हमारी टीचर को पता चल रही है, जो कि अच्छी बात भी है कि हमारी टीचर इतना ध्यान देती है एक एक बच्चे पर। मगर आप सभी पेरेंट्स जो है ना, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका रोल हमसे थोड़ा ज़्यादा होता है। हम डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छी किताबें देंगे, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करेंगे,
मगर क्या वो बच्चे स्पेशली प्राइमरी और मिडिल क्लास में अच्छे से समझ पा रहे हैं, उनको सब ठीक से, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आप हमें कन्वे करिए, तभी हम इसको और इम्प्रूव कर पाएंगे। सो बस यही कहना था। और फिर से एक बार मेरे बहुत बहुत अभिनंदन मैडम सीईओ को, मैडम डायरेक्टर को, मैडम कुंसांग, डीपीओ साहब और जेडीओ साहब और सारे पेरेंट्स जो एक ऐतिहासिक कदम का हिस्सा बन पाए कि अब हम 2 स्कूल्स मिलकर एक बनेंगे और सारी फैसिलिटीज़ क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12th के बच्चे के लिए अवेलेबल होगी। और इसी के साथ मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि इससे बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों को भी ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में और उनके रिजल्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, जो हम सब देख सकेंगे। थैंक यू तुझे छे yang diring girls high secondary school lang middle school man ba yang school mangpo shingata diring club chenjang ino gele te o khetana middle school khangral bo khetana ngata middle school skurbu chang ya po songsta no gele tene tenna choksla primary school alchina gongba lungba khetana ngata high school alchina thang ya po ngata merge songsta no gele teo manba PS Kharpuk Saspol wo khetana ngatai middle school Saspol nya po sonstan reale tenna choksla primary school Katpo Ledo khetana ngatai khetana middle school Ledo nya po ngata merge justan reale tene middle school primary school Skumpata Yokma khetana ngatai high school Lingshet nya po jatte no reale tene e schools kune na ngata chikpata ngata role bunchu chikam yoche se jaste nyampo khetana tenna yul bena school chik nis yoche po jaste tene te changma chik joste ngata yun ya po shelte no taki ngata school bo strengthen joinen thula education ngata khetana quality education provide chen tene nyampo thu na peer learning gyala chen ya jule thukshe che jule you molara ki nyeja teacher sangmena te jiksnang jikto ki ngatang khetana I kana school bo ban songstang na a school benang ne ta ngata khetana school lo ban changsana ngatang karu chenjer kane jiksnang jik teacher guna luz dukmala teo bilkul chachis mano kalte sanction post pote ka cham shigyot tene next a school bena ka bena merge song teve ka danda teacher gun lushe sino mola ragale tene teachers gun barabar lushe sino magar school bena khetana thu nang teacher changma chik chosenga tai chagla japchi sino thukshe chechule afternoon to all of you. I, on behalf of Government Girls Higher Secondary School Leh and on my own, would like to convey sincere thanks to the worthy Secretary School Education UT Ladakh, Madam Banu Prabha, IAS, for sparing her valuable time to grace this occasion, and also her being a source of immense guidance all the time in implementing of several school education projects. I sincerely thanks Madam Delda Nangmo, the Chief Education Officer, for sparing her valuable time to grace this occasion and also for her support and guidance in the administration of affairs of this school. And also, I would like to thank Sir Phunsokle, District Planning Officer, for sparing his time on this occasion. I also thank Zonal Education Planning Officer, Sir Chamba Le, for sparing his valuable time to attend this occasion. And also, I would like to extend my sincere thanks to the parents and also a headmaster and staff of Middle School Leh and the media person, and especially to the students of both school, Middle School Leh and Girls Higher Secondary School Leh.